Good morning, students. Hope you will be fine at your respective places. Today, we are going to start another topic that is the nutrient cycling, or we can simply call as cycling of nutrients. Dear students, as you are aware that all living organisms, that is the biotic component of an ecosystem, they get matter from the biosphere. Now, essential elements or inorganic substances. Essential elements और अगर हमको बात कर लेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर प्रोवाइडेड बाय द अर्थ. वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? दे आर प्रोवाइडेड बाय द अर्थ एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द. इसकी अहमियत कहाँ पर है? दे आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर बॉडी बिल्डिंग, फॉर देयर बॉडी बिल्डिंग एंड मेटाबॉलिज्म. So, what we know, all living organisms or biotic components of an ecosystem, they get matter from the biosphere. Now, the essential elements or inorganic substances, अगर हम बात कर लेंगे, these essential elements they are provided by earth and they are required, उनकी ज़रूरत पड़ती है organisms को for their body building and metabolism. And these are known as, these essential elements, इनको हम क्या बोलते हैं? They are known as biogeochemicals. इनको हम बोलते हैं biogeochemicals. अब the amount of nutrients like carbon, like hydrogen, लाइक कार्बन, अगर हम बात कर लेंगे नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, फास्फोरस की बात कर लेंगे, कैल्शियम की बात कर लेंगे, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विच आर प्रेजेंट इन ए सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज स्टैंडिंग स्टेट. नाउ द amount of nutrients like carbon, like nitrogen, like phosphorus, like calcium, which are present in the soil, जो soil में पाए जाते हैं at any given time, किसी भी time पर, that is referred to as the standing state. And these nutrients, they varies in different ecosystems. वो वेरी करते हैं. दे वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम एंड दे आल्सो वेरी इन डिफरेंट सीजन्स. नाउ वी आर अवेयर द न्यूट्रिएंट जो हैं, दे आर नीदर क्रिएटेड, दे आर डिस्ट्रॉयड. अब न्यूट्रिएंट जो हैं, दे आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड द मटीरियल जो हैं, दे मस्ट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दीज न्यूट्रिएंट्स जो हम बात कर लेंगे, वो कभी ना डिस्ट्रॉय होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं, लेकिन उनको हम सो द मटीरियल्स मस्ट हैव बीन यूज्ड again and again in the formation of organism. So we can say that these nutrients can be recycled. In short, अब न्यूट्रेंट साइकिलिंग की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, वो हम कैसे लिखेंगे? द exchange of materials between living and non-living components, the exchange of materials between living and non-living components of biosphere. The exchange of materials between living and non-living components of biosphere is called biogeochemical cycle.
अब जो हम कहते हैं कि दैट जो न्यूट्रेंट जो होते हैं दे आर नीदर क्रिएटेड दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड सो द मटेरियल मस्ट हैव बीन यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन से जो न्यूट्रेंट्स हमारे पास है दीज आर रिसाइकल्ड. नाउ what is how we can define that the exchange of this cycling of nutrients, how we can define this as the exchange of materials between living and non-living components of the biosphere is called as biogeochemical cycle, or we can simply call it as nutrient cycling. Now these nutrients they flow from non-living and back to the non-living in a circular fashion. First non-living to what we call as the living, then back to the non-living in a circular fashion. Now we have got two types of these biochemical cycles. एक को हम बोलते हैं gaseous cycles, दूसरे को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स. गैसेस साइकिल जो हमारे पास है वी हैव गॉट कार्बन साइकिल, वी हैव गॉट हाइड्रोजन, वी हैव गॉट नाइट्रोजन, वी हैव गॉट ऑक्सीजन, वी हैव गॉट फॉस्फोरस. रखा याद. और जो इनमें हम जो कहेंगे रिजर्वायर फॉर एलिमेंट्स वो कहाँ पर है, दे आर इन द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. दूसरी बात जो हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल्स है दैट इज़ फॉर एग्जांपल वी हैव नो, यहाँ पर फास्फोरस नहीं आ जाएगा, वी विल फाइंड दिस फास्फोरस है, वी हैव गॉट सल्फर है, वी हैव गॉट कैल्शियम है. यहाँ पर हम क्या दें जो रिजर्वायर है जहाँ से हम एलिमेंट्स हासिल कर सकते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सेडिमेंट्स ऑफ द अर्थ. अब जो यहाँ पर जो रिजर्वायर है, दूसरी बात सेकंड वन रिजर्वायर ऑफ दीज एलिमेंट्स जो है दैट इज एटमॉस्फेयर, दूसरी है हाइड्रोस्फेयर. यहाँ पर जो रिजर्वायर है वो कौन से हैं, दैट इज द व्हाट वी कॉल्ड एज दैट इज द sediments of the earth. And अब ये वाले जो हैं दे आर फास्ट इन एक्शन. दूसरी बात जो गैसेस साइकिल है लेकिन जो है दे आर स्लो इन एक्शन. अब जो हमारे पास बायोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रेंट साइकिल है वो हमारे पास दो किस्म के, एक को हम बोलते हैं गैसेस साइकिल, दूसरा हमारे पास है सेडिमेंट्री साइकिल. गैसेस साइकिल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाइल सेडिमेंट साइकिल हमारे पास है फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है. यहाँ पर जो रिजर्वायर पाया जाता है दैट इन दिस के रिजर्वायर फॉर एलिमेंट जो है दैट इज इन द एटमॉस्फेयर एंड इन द हाइड्रोस्फेयर. यहाँ पर जो रिजर्वायर है दैट इज इन द सेडिमेंट्स ऑफ द अर्थ. दे आर फास्ट इन एक्शन, दे आर स्लो इन एक्शन. नाउ अब जो हम देखते हैं हर एक जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है या जो न्यूट्रेंट साइकिल है इट हैज़ गॉट टू टाइप्स ऑफ पूल्स. इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू पूल्स. एक पूल को हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर पूल. गोया हर बायोकेमिकल साइकिल इज कंप्राइज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ पूल्स. एक होता है रिजर्वायर पूल, दूसरे को हम बोलते हैं एक्सचेंज और साइक्लिक पूल. नाउ व्हाट डू यू बाय reservoir pool? It is large, it is slow moving, and it is generally non-biological. It is generally non-biological. हाँ, it mainly supplies nutrients. It is large, it is a slow moving, and it is mainly the non-biological. It mainly supplies the nutrients. रखा याद.
दूसरी बात, एक्सचेंज या साइक्लिक पूल की हम बात कर लेंगे। इट इज़ द स्मॉल, इट इज़ द फास्ट मूविंग कंपोनेंट, रखा यार। दूसरी बात, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दैट फास्ट मूविंग कंपोनेंट विच इज एक्सचेंजिंग rapidly between organisms and environment. This is small, it is the fast moving component which is exchanging rapidly between the organisms and the environment. दूसरी बात हम कहेंगे, on the basis of the movement of nutrients, this exchange or cyclic pool, it base of the nutrients, biogeochemical cycles. अब हम ये देखेंगे, on the basis of movement of nutrients, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं परफेक्ट साइकिल, दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल अगर हम बात कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस साइकिल मैंने द गैसेस साइकिल जो होते हैं, जो न्यूट्रेंट जो होते हैं, दे रिमेन इन सर्कुलेशन more or less uniformly. यहां पर क्या देखते हैं, दैट these cycles जो हम बात कर लेंगे, they get easily disrupted by local disturbances. उसकी दूसरी बात है why they remain disturbed by the local disturbances, as the bulk of material remains in the relatively inactive and immobile reservoir on the Earth's crust. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इन दी साइकिल्स न्यूट्रेंट जो होते हैं, they self adjust rather quickly. अब परफेक्ट साइकिल में हमारे पास क्या होता है, इन दीज साइकिल्स जो न्यूट्रेंट्स दे रिमेन इन द सर्कुलेशन मोर और लेस यूनिफॉर्मली। यहाँ की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट द कार्बन साइकिल, वी हैव गॉट द ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पर हम इम्परफेक्ट साइकिल में कहते हैं दे गेट ईजिली डिस्टरप्टेड बाय लोकल डिस्टर्बेंस एज द बल्क ऑफ मटीरियल रिमेन्स in their relatively inactive and immobile reservoir on the earth's crust. यहाँ पर जो हमारे पास साइकिल्स है, they are mainly the phosphorus, we have got the sulfur, we have got the calcium, we have got the potassium cycle. And this was all for the today. In the next topic we will try हमारे पास दो साइकिल्स पढ़ने, एक हमारे पास है कार्बन साइकिल, दूसरा हमारे पास है that is this नाइट्रोजन साइकिल. Now what we have studied all living organisms are biotic components, they get matter from the biosphere. Now essential elements or inorganic substances, they are provided by the earth, and these essential elements they are utilized for body building and metabolism.
and these are known as biogeochemicals. अब जो amount of nutrients, like we have got carbon, we have got nitrogen, we have got phosphorus, we have got calcium, which is present in the earth, which is present in the soil at any given time, is referred to as standing state. अब जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल और विच इज कॉल्ड एज द न्यूट्रेंट साइकिल. नाउ व्हाई दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, उसकी भी एक वजह है कि जो न्यूट्रेंट्स होते हैं दे आर नीदर क्रिएटेड, दे आर नीदर डिस्ट्रॉयड, सो द मटेरियल जो होते हैं दे मस्ट हैव बीन यूज्ड अगेन एंड again in the formation of organisms. अब जो न्यूट्रेंट फ्लो होता है इट फ्लोज फ्रॉम नॉन लिविंग and then back to the non-living in a circular fashion, and we have mainly got two types of the cycles. First one is the gaseous cycle, second one is the sedimentary cycle. gaseous cycle हमारे पास है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. sedimentary cycle हमारे पास है फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है. gaseous cycle में हम दूसरी बात ये देखते हैं जो रिजर्वायर है फॉर द एलिमेंट दैट इज एटमॉस्फेयर, इज इन द एटमॉस्फेयर और इन द हाइड्रोस्फीयर. यहाँ पर जो रिजर्वायर है दैट इज द सेडिमेंट of the earth. They are very fast in action, they are slow in action. अब दूसरी बात हम ये देखेंगे what we'll see, हर एक biogeochemical cycle it is composed of two types of pools. It is composed of two types of pools, reservoir pool and we have got exchange or cyclic pool. जो रिजर्वायर पूल हमारे पास होता है इट इज़ लार्ज, इट इज़ स्लो मूविंग, it is slow moving and it is mainly non-biological, while as this exchange it is small, it is fast moving component which is exchanging rapidly between the organisms and their immediate environment. Now, on the basis of the movement of nutrients, biogeochemical cycles are of two types. First one, perfect cycle, imperfect cycles. अगर हम perfect cycles की बात कर लेंगे, for example, we have got the gaseous cycle. जो न्यूट्रॉन जो होता है they remain in circulation more or less uniformly. दूसरी बात, न्यूट्रॉन्ट जो होते हैं they self adjust rather quickly. अगर हम imperfect cycles की बात कर लेंगे they get what we called as easily disrupted by the local disturbances as the bulk of material remains in the relatively inactive and immobile reservoir in the earth's crust. Now today we will start टू इम्पॉर्टेंट साइकिल जो हमको स्टार्ट करने, एक गैसेस साइकिल का, एक हमको पढ़ना है व्हाट वी कॉल्ड एज दिस सेडिमेंट्री टाइप का. अब जो गैसेस साइकिल में हमारे को पढ़ना है व्हाट इज दिस, दैट इज द कार्बन साइकिल. उस कार्बन साइकिल को हम पढ़ने की कोशिश कर लेंगे और उसको समझने की कोशिश कर लेंगे हाउ दिस कार्बन जो है हाउ इट गेट्स रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन in our environment. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.